we are here and we are talking about the sustainability at large with a different aspect. So before moving towards the discussion, I would like to make some understanding that we being Green Alpha, we are working on the project on the cause of sustainability. As I'm showing here, that we are focusing three tires. We are focusing three areas basically. We have been with the industry. We have worked with Rajbi Textile. We have worked with. Someone is having a query. ओके डजंट मैटर मकसद ये है सबको पता चल सके तो आवाज ही नहीं जा रही तो फायदा क्या होगा ना डजंट मैटर This is a very common thing we do have in online sessions. Online sessions doesn't matter. So I was saying that we are focusing three tiers, तीन तरह के institutions, organizations. Rajbi Textiles is a big name, Artistic Millionaires, you would have heard the name. It's a big player of denim, Surti Enterprise. So we went there, we had a discussion there, and they were having the awareness, but the employees there, they were just focusing the aspect as an organizational policy matter only. Moving forward, if I'll talk about other endeavors, we have been attaching the NGOs, as I'm showing earlier, that we are having this activity with Hunar Foundation as well. These are some of the classes of Hunar Foundation which are being seen here with the tag of Hunar Foundation. So after the corporate sector, we are focusing the NGOs, because NGOs are the sector which are implementing the seed of education and sustainability in their mind. And I would like to tell you that this Hunar Foundation is working very actively for the aspect of sustainability. And lastly, but not the only one, that we are also focusing on the hospitality and the educational sector. And we have been to Aga Khan School, and we have been to the Ziauddin University and Ziauddin Hospital. And one thing which I would specifically, with the aspect of education, I would like to make it clear to everyone, and it is a very notable thing that the student at Aga Khan School, I'm not talking about the university, I'm not talking about the college, I'm talking about when we had an interaction with the student at Aga Khan School, those students of the matric level, they were having a better understanding of sustainability, and I can compare it with any of the student studying in bachelor's level. So at some platform, at some areas, the players, the educational players are working very in-depthly to inculcate the value of sustainability in that, and it's a very thing of proud for us कि लोग इसके बारे में सोच रहे हैं. So moving towards sustainability, I would like to call in Dr. Adnan to shed some light over it. Thank you. Over to Adnan. The topic is the topic of sustainability is always been very close to my heart. One of the reason is I have been working on this topic for the last 10 or 12 years. My PhD is in green marketing. I'm really happy the things are changing now, because when I started my work on green marketing, so it was a total novel domain. Atif was with me in Ikra University. He remembered when I used to say I'm working on green marketing, so people used to think I'm doing something on botany, biology, you know. I'm not kidding, honestly speaking, and they all of them were very learned people. But now when I say I am PhD in green marketing, people understand it is something relevant with sustainability. In the last 5 years, after the emergence of this sustainable goals, sustainable developmental goals, things have been changed. Uh, this is the buzzword sustainability. In next few minutes I will try to tell you in the easiest way what is the concept of sustainability. Although it's a buzzword and we understand, sustainability means meeting the current demands and need without compromising the future needs of the future generation. It means if you are consuming 20 kg of wood in your life, or let's suppose make it very practical, 1 ton in your entire life period of time. Let's suppose we have a 65 years of life, inshallah, at least. So in our whole life, if we consume 1 ton of wood, so before leaving this world, if we try to arrange the wood for the planet of 1 ton at least, so it means that we have spent very sustainable life.
Because of the biological reason, when we are born, we start breathing. It means we are continuously taking in the oxygen and we are taking out, exhaling the carbon dioxide. This is our carbon footprint. Uh, should I? Okay. तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बिफोर लिविंग दी आप अच्छा ठीक है before leaving the world, we should replenish the natural resources we have taken from the earth, and this is a basic concept of sustainability. When we go into the detail, there's another common buzzword, triple bottom line approach. It means previously, before 1990s, there were only two stakeholders in the world. दुनिया में जो भी काम हो रहा था, only two stakeholders were considered in decision making. The first one is a society of people. The second one is a profit, which is a company. Anything which was beneficial for the company was being produced, and anything which is good for the society, for the people, it was being sold. But the problem is that during that period, which lasted almost 200 years or more than 200 years after the industrial revolution, we damaged the planet a lot. And in late 70s, early 80s, the people started thinking, definitely the people belong to the developed country, not the developing countries. They started thinking okay, there is something wrong, they are missing some stakeholder, and the idea emerged the planet should be a stakeholder. Now if you see the triple bottom line, you always see the three circles, they are overlapped, and any activity which is good for planet, generating profit, and acceptable by the people or society, it is sustainable practice. The blue area. This the blue area in the diagram. Okay, इसमें एक जो important बात है, when we go to the industry, people think कि CSR is a sustainability. No, it is not. In the CSR activity, the companies usually do not get any profit. तो उसमें आपका खर्चा हो रहा होता है because you are serving the people and you are saving the planet, but you are not earning any profit. But sustainable practices means there must be the increase in profit. Now this is the basic concept of sustainability. Now I will talk about a little. I will talk little about the history of the Sustainable Developmental Goal. Basically, what happened in 1992, a very famous conference was held in Rio. It was called Earth Conference in 1992, and there 150 plus country heads were there, and they started pondering what to do to save the world, because in Western world it was being realized that there is something which is missing, and they came up with the agenda 21. It is a very famous document. If you read the sustainability history, so you will find this document as a kind of Bible for them. And they start working on agenda 21, and they set some targets for 2020, 2035, and 2050. And after 20 years, when they held another conference, Rio plus 20 conference again in Rio, so it was established the world has been divided into two streams. The first was the developed countries, that labeled as green countries, and second was like Pakistan, developing countries and brown countries. And at that time, they realized that they need to do something more, and the more was SDGs. And they, after 2012 conference, they came up with 17 SDGs. It has been flashed here. Now you can see कि अगर हम इन 17 गोल्स को देखें तो it encompasses almost every walk of life. The first one is zero hunger, no poverty, quality education is on number 4, which we are going to focus more in today's session. If you see the 12th SDG, it is responsible consumption and the life on land, infrastructure, or it's about gender equality is on number 5. So if you ask us, for me and for us, the education is the mother of all SDGs, because if you start educating your people, educating your society,
the people would have every solution of every problem. Like we have seen Sri Lanka has been announced bankrupt, and for us it was an alarming situation because it was being said that the Pakistan is going to follow the Sri Lanka very soon or later. But you see, after their announcement of bankruptcy, they played the World Cup, and everything is very normal there now. We are not hearing very scary news from the New Zealand. The reason is very simple, because they have 93, almost 93% literacy rate, and the Pakistani literacy rate is, according to the World Bank, it is 57. If you search in some places, you will find 62%. So it means it is very less. If you see the Bangladesh, they are having a literacy rate of 73%. India is around 72 or 73, more or less 72 or 73%. These countries are similar to us, and they have a more or less same population. Like Bangladesh has, we have a very similar population. The characteristics are same. The culture is almost same. The reason is because we do not spend much on education. Now, I would invite Salman to talk about it. Later on, I will discuss more on it. Please. Okay, thank you, Adnan. So we are here and we are now talking over the specific goal of education right now. But अगर हम देखें तो उस जो पीछे एसडीजी के 17 गोल नज़र आ रहे थे मैडम, उसके बारे में अगर हम सोचें तो ये सारे गोल एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हम सोच लेते हैं कि वंस अ पर्सन इज एजुकेटेड, सारे गोल इंटर रिलेटेड हैं। तो ये जो एजुकेशन वाला गोल है, इसको अदनान ने बोला कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? इस वजह से कि अगर हम कोरिलेट करके देखें इसको और हम एग्जाम्पल 5 ही करें, तो एक आदमी जब एजुकेटेड हो जाता है तो डेफिनेटली वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहेगा। अच्छा, जब वो उसका जो आदमी जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया है, जो बच्चा पढ़ जाएगा, उसके बाद जब वो काम करेगा, तो अगर हम गौर से देखें तो गोल नंबर 1 खुद ही हासिल हो जाएगा। गोल नंबर 1 क्या कह रहे हैं? नो पॉवर्टी। डेफिनेटली अगर वो पढ़ा हुआ नहीं होता तो वो कभी भी वो रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं कर सकता। तो पढ़ने की वजह से डेफिनेटली वो पॉवर्टी भी कम होगी। पढ़ने की वजह से डेफिनेटली वो अपना लिविंग स्टाइल बेहतर करने के लिए, अगर गोल नंबर 8 को देखें, डिसेंट वर्क, अगर पढ़ा हुआ नहीं होता तो वो डिसेंट काम तो जरूर करता लेकिन डिसेंट वर्क नहीं करता। तो हमें इस तरह से अगर हम इस चार्ट को देखें और ये फोकस करें कि एजुकेशन कौन कौन से गोल को फुलफिल कर रहा है। मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं यहाँ पर, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम हुनर फाउंडेशन में बात कर रहे थे, हुनर फाउंडेशन इज एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग टेक्निकल एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। वहाँ पर जब स्टूडेंट तालीम हासिल करता है, एजुकेशन, अगेन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो गोल नंबर 12 हासिल कर रहा था। वो हमारा डिस्कशन में निकल के आया। गोल नंबर 12 कह रहा है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। हुआ क्या, हमारा जब डिस्कशन हुआ तो हमने कहा तालीम हासिल करके तुम क्या करोगे। अच्छा, वहाँ हमारा एक पानी के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, जो अक्सर हम पानी की स्केर्सिटी के ऊपर बात करते हैं। तो वहाँ बात ये निकली कि वो जो हुनर फाउंडेशन में बच्चा टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहा है, वो नल भी बनाता है, वो मोटरसाइकिल की वेल्डिंग भी करता है, और वो स्टिचिंग भी करता है, और वो कॉस्मेटिक्स के काम भी सीखती हैं वहाँ पे लड़कियाँ। तो हमने उसे बोला कि तुम्हारे एंड पे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन क्या है, गोल नंबर 12। एवरीवन वाज हाल्टेड फॉर अ मोमेंट। यार, मेरे एंड पे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन क्या है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे एक टेक्निकल काम सीखता हूँ। हमने कहा तुम जब नल बनाते हो तो उस नल के अंदर जब तुम नल ऐसा बना देते हो जिससे पानी बहता रहता है, तो क्या ये रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन है? उसने कहा रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन नहीं है। उसको हमने एजुकेट कर दिया, हमने उसे डिस्कशन से क्या किया, वो बच्चा कितना खुश हुआ था अदनान जब हमने उसे बोला एक्स्ट्रा चूड़ी बनाया करना। एक नल के अंदर जो नल टाइट करने का होता है, तो उसने जो एक एक्स्ट्रा चूड़ी बनानी है वो गोल नंबर 4 से हासिल हो रही है। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और उसकी वजह से गोल नंबर 12 हासिल हो गया। एंड दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग कि किस तरीके से एक गोल दूसरे गोल को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इसी तरीके से ये जो क्वालिटी एजुकेशन है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स द मदर ऑफ ऑल ऑफ द गोल्स। और अगर हम इस एसडीजी के गोल नंबर 4 के ऊपर बात करें तो ये खास एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है, जो डाइवर्स एजुकेशन के लिए आने वाले लोग हैं उनको इंक्लूसिव एस्पेक्ट में इन्वॉल्व करना। And equity is the other thing which should be there, because people are coming from different frame of mind, people are coming from different thinking patterns, और ये different thinking patterns
मॉडर्न मैनेजमेंट की थ्योरी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक फंक्शनल एस्पेक्ट होता है। तो इस फंक्शनल एस्पेक्ट को जितना ज़्यादा एसिमिलेट करेंगे अपने करिकुला के अंदर, जितना ज़्यादा इंक्लूसिव होगा और जितना ज़्यादा इक्विटेबल होगा, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। अब वो बच्चा सोच रहा है काम करने के बारे में कि मैं किस तरह से अपने आइडियाज़ यहाँ पर शेयर कर सकूं। दैट इज़ द फिनोमेना विच इज़ सेइंग हियर दैट इट शुड बी इक्विटेबल एंड इट शुड बी इंक्लूसिव। जस्ट टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि भाई इक्विटेबल और इंक्लूसिव क्या है। इंक्लूसिव मीन्स आइडिया, अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग्स, थिंकिंग, patterns of the learner should be included in the curriculum. That is the concept of inclusion. अब डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो कुछ लोग फिजिकली हैंडीकैप होंगे, कुछ लोग आईक्यू के हिसाब से हैंडीकैप होंगे, कुछ लोग अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के हिसाब से हैंडीकैप होंगे, कुछ लोग नहीं एक्सप्रेस कर पाते अपने आप को। बहुत सारे हमारे पास बलूचिस्तान के बच्चे हैं, शायद वो एक खास लैंग्वेज में बात ना कर सके, अपनी लैंग्वेज में बात करना चाहते हो। अच्छा, अच्छी कौमें या वो कौमें ही तरक्की करती हैं जो जिस जिस लैंग्वेज में सोचती हैं उसी लैंग्वेज में रिसर्च करती हैं, उसी लैंग्वेज में आउटपुट देती हैं। जापान की एग्जांपल हमारे सामने है, चाइना की एग्जांपल हमारे सामने। तो इंक्लूजन के लिए हमें अपने पास जो 4 सूबे हैं और हमारा कश्मीर का एरिया, उसमें जो सारे लोग हैं उनको हमें इंक्लूड करने के लिए एक एस्पेक्ट जो डिस्कशन में सामने आया कि वो एक सोच जिस एंगल में, जिस एस्पेक्ट में सोचते हैं उसको उसमें शामिल करना, दैट इज इंक्लूजन। एंड इक्विटी, बराबर मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे थे, हम सब ने ऑनलाइन पढ़ाया होगा। ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे वापस अपने कोविड के ज़माने में वापस अपने घरों में चले गए किसी भी वजह से, कि उनके पास इश्यूज़ थे, हेल्थ इश्यूज़ थे। वहाँ पे जब वो पहुँचे तो हम सब ने सुना था कि उनके घर में इंटरनेट अवेलेबल नहीं है या उनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया इक्विटी का कि ये चीज़ें भी मिला अवेलेबल होने चाहिए। इसके अलावा इफ़ द स्टूडेंट इज़ विद इन द कैंपस, तो उसके अलावा वहाँ भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स निकल के आएंगे जो उसे हमें प्रोवाइड करने हैं। उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात ऊपर आगे करेंगे। तो इस वजह से एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात यह कि अल्लाह ने जो सबसे पहली वही अपने नबी के ऊपर भेजी, 30वें पारे में सूरह अलक में अल्लाह ताला ने फरमाया यही, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, पढ़ो ए नबी पढ़ो। इसका मतलब है हम अगर यूएनओ के गोल के अलावा ही अगर हम बात करें तो सोसाइटी के अंदर यूएनओ के गोल्स, और अगर हम अपने मजहब के हिसाब से बात करें तो अल्लाह का हुक्म भी सबसे पहले हमें प्रोमोट करता है कि एजुकेशन इज द मदर, एजुकेशन इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। तो अब यहाँ पे ये बात तो हम सब ने मेरे ख्याल में एग्रीड ओवर है, और एक्चुअली हम बैठे भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं, तो एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, हम सबको ये बात पता है। लेकिन इस सारे बैकग्राउंड डेवलप करने से हमें ये समझ में आ गया कि एजुकेशन इज़ द बैकबोन, और उसके अंदर अगर सस्टेनेबिलिटी का एस्पेक्ट आ जाए, और सस्टेनेबिलिटी के एस्पेक्ट को अभी मैंने हुनर फाउंडेशन की एग्जाम्पल से बड़े कन्वीनियंट तरीके से समझाने की कोशिश की या अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि वो जो स्टूडेंट है जब वो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अपने अंदर ले लेगा ना, तो ना सिर्फ वो एक लर्नर के तौर पे इसे अडॉप्ट करेगा, बल्कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़िंदगी में वो एक क्या होगा, वो एक पॉलिसी मेकर भी होगा। हर स्टूडेंट, हम सब जो आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टूडेंट थे, हमें भी सस्टेनेबिलिटी का आइडिया दिया जाता, तो हम आज शायद उसके बारे में कहीं और किसी और लेवल पे खड़े हुए होते। तो अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो वी आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज अ वेलफेयर स्टेट। तो गवर्नमेंट जो है वो किसी भी जगह पर एजुकेशन प्रोवाइड करने का सबसे मेन सोर्स है, आइदर प्राइमरी, आइदर सेकेंडरी, आइदर टर्शियरी। हर लेवल पे गवर्नमेंट एक सोर्स है। और अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से बात करूँ तो डेफिनेटली प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे तो शायद इतनी एग्रेसिव अप्रोच की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस लेवल पे हम और आप खड़े हुए हैं टर्शियरी लेवल पे, इस लेवल पे हमें जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी एक सॉलिड एफर्ट होगी जब इंक्लूजन और डाइवर्सिटी और इक्विटी के ऊपर, तो वो एम्प्लॉई जो लर्नर है वो ज़्यादा एग्रेसिवली उसके ऊपर काम करेगा। एजुकेशन क्या करेगी भाई? एजुकेशन बिल्ड करेगी नेशन। एक एक नया, ये जो सस्टेनेबिलिटी है ना, ये जो सस्टेनेबिलिटी के 17 गोल है, ये बिल्कुल डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न है। लेट मी शेयर एन एग्जांपल। रजबी टेक्सटाइल में
और आर्टिस्टिक में हमारी बात हुई, तो हमने बोला कि भाई ये जो आप डेनिम बनाते हैं, आपको पता है डेनिम बनाने में, एक पैंट बनाने में, एक जीन्स बनाने में कितना पानी लग जाता है? कोई वाइल्ड आइडिया दें। एक पीस बना, एक पीस बनाने में कितना कितने पानी लग लीटर्स जाता है? पानी लगता है? 5 लीटर्स। यू आर फार बिहाइंड, यू आर फार बिहाइंड। काफी का अप्रोक्स में आपको 90 to 100 लीटर्स पानी एक प्रोडक्ट बनाने में, एक जीन्स बनाने में लग जाता है, क्योंकि वो डाइंग का प्रोसेस होता है। तो यू हैव टू थिंक आउट समथिंग डिफरेंट। अभी सोल्यूशन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे देना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई डेनिम के बारे में सोचने वाले नहीं है, लेकिन मैंने एक आइडिया आपको दे दिया है कि एक जीन्स, ये जो डॉक्टर अदनान पहन के आए हुए हैं, इसके पीछे इन्होंने 90 लीटर पानी यूटिलाइज करवाया हुआ है। अच्छा, वो 90 लीटर पानी पाकिस्तान में आर्टिस्टिक मिलियनियर्स उस 90 लीटर पानी को रीयूज, रिसाइकिल भी करते हैं। अच्छा, अब डिस्कशन से डिस्कशन निकलता जा रहा है, तो इस वजह से मैं सस्टेनेबिलिटी के एस्पेक्ट से एक एग्जांपल देके बात को यहाँ पे क्लोज करूंगा कि जो आर्टिस्टिक मिलियनर्स वाले जो पानी डाई करने के बाद रिसाइकिल नहीं करते और ऐसे ही रिलीज कर देते हैं, दैट वाटर एज पर रिसर्च इन पाकिस्तान इफ फिल्टर्ड, तो वो जो पानी डाइंग के बाद निकलता है ना, उसके अंदर जो ना जो जिस किस्म की कंपोजिशन होती है वो सब्जियों के लिए अच्छी हो सकती है फिल्टर करने के बाद। पाकिस्तान में रिसर्च कहती है कि अगर वो फिल्टर्ड वाटर सब्जियों को दिया जाए तो सब्जियां जो छोटी उगती हैं वो बेहतर उगेंगी, बहुत फर्टाइल होता है, फर्टाइल होता है, थैंक यू फॉर द वर्ड। तो वो जो सब्जी छोटी उगती है, जो कम उगती है, उसको हम ज्यादा बेहतर पानी फिल्टर्ड वाटर देंगे। ये सोचना किसका काम है? उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो डाइंग मास्टर है या जो फिल्टर प्लांट पे बैठा हुआ है। ये जो फिल्टर प्लांट पे जाके बैठेगा, ये आइडिया कहाँ जनरेट करेगा? जहां से वो क्वालिफाइड होके आ रहा है, जहां से वो क्वालिफाइड होके आ रहा है। इसी वजह से हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही वो फोकल पॉइंट है जहां पे वो इन स्टूडेंट्स के दिमाग में वो सीड बोएगा कि यू बीइंग अ पॉलिसी मेकर, व्हेन यू विल रीच देयर एट दैट पोजीशन, सो यू हैव टू थिंक ओवर कि मुझे वो जो कंजम्पशन है या वो जो प्रोडक्शन है, बेसिकली हम सबके जो ग्रेजुएट्स हैं वो किसी सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं। और बीइंग एन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हमें ये करना है कि उस करिकुलम में वो थिंकिंग उनके अंदर डेवलप करनी है कि हाउ यू कैन बी सस्टेनेबल। इस वजह से डेफिनेटली अगर मैं HAI की बात करूं, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो उसको इस सस्टेनेबिलिटी के प्रोग्राम को रन करना होगा, एंड एवरी सीड रिक्वायर्ड फंडिंग। तो जनरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इस सस्टेनेबल रेवोल्यूशन को इन करने के लिए, जिसके ऊपर हम काम कर भी रहे हैं, हमें सबसे पहले जो रिक्वायर्ड है वो है डेफिनेटली फंडिंग। अब वो फंडिंग हमें HEC से मिल रही है, हम फंडिंग इंटरनली जनरेट कर रहे हैं, फंडिंग के लिए एंडोवमेंट जनरेट कर रहे हैं, एंडोवमेंट फंड व्हाटसोएवर दैट डिपेंड्स के भाई इसके हम इस एफर्ट के फायदे क्या होंगे, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी आखिर में बात करेंगे। डेफिनेटली द सेकंड थिंग इज आवर फोकस इज इंक्लूसिव एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। वो जो बच्चा जिसकी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, जो बलूचिस्तान से आया, अब ये बलूचिस्तान से आया है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे एरिया से आए जहां पे थिंकिंग पैटर्न, वर्किंग टर्मिनोलॉजीज, वर्किंग हैपनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है। उस डिप्राइव्ड बच्चे को उस करिकुला के अंदर क्या करना, शामिल करना। कारेज एक मेथड है, हम सब ने नाम सुना होगा, पानी एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका है। तो ये एक फिनोमेना आपका नोन फिनोमेना है। बलूचिस्तान में ऐसे कई फिनोमेनाज होंगे जो अननोन होंगे, वर्किंग प्रैक्टिसेस होंगी जो आपको अननोन होंगी। हम उसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? कौन बताएगा? वो वाला थिंक टैंक बताएगा जो हमारे साथ आके इसके ऊपर डिस्कशन करेगा। यानी कि ये एक वन टाइम एफर्ट नहीं होगी, बल्कि ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी। और डेफिनेटली यहाँ पे हम बात करने आए हैं QEC के ऊपर, तो ये जो लाइफ लॉन्ग करिकुला बनाना है, ये किसका काम है? QEC का काम है। QEC के काम जो सामने नजर भी आ रहे हैं, जिसके ऊपर थोड़ी सी बात अदनान करेंगे। थैंक यू अदनान। Thank you. अच्छा, what Salman has said कि he tried to make it very clear कि without education nation cannot be built. अच्छा, मेरा एक सवाल है, आई एम श्योर इसका जवाब मुझे पहले से पता है, क्या हम अपने मौजूदा हालात से मुतमईन हैं? डू वी वांट टू इम्प्रूव?
इस वक्त आज की आपने खबर देखी होगी तो अब इकोनॉमिक इमरजेंसी की बेस पे हुकूमत बनने वाली है, ठीक है। एक आप सुन रहे हैं बात ना, तो एक एक बहुत बड़ा दुनिया का छठा सातवां बड़ा मुल्क आबादी के हिसाब से, ठीक है, वन ऑफ द एटॉमिक कंट्री, उसकी इस वक्त बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मैनेजमेंट, लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, ये हम सब एग्री करते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। हमारे लोग यहाँ से जब बाहर जाते हैं, वी आर फेसिंग अ रियल चैलेंज विच इज अ ब्रेन ड्रेन, ठीक। हम बड़ी मुश्किल से लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आवर नेशन शुड बी स्टूड ऑन आवर फीट, और जो तैयार हो रहा है वो भाग रहा है, जिसका मतलब है हम सब इस बात से मुत्तफिक हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। हालात कैसे बेहतर होंगे, तो उसमें सबसे पहली चीज़ है एजुकेशन। अब प्रॉब्लम ये, हम अपनी बजट का 6%, वी आर जस्ट स्पेंडिंग 6% ऑफ द बजट ऑन एजुकेशन, और जिसको तैयार कर रहे हैं वो मुल्क छोड़ के भाग रहा है। दिस इज अलार्मिंग। लोग कहते हैं जी कि स्मगलिंग रोको, उसकी डॉलर की, उसकी मैं कहता हूँ जी ह्यूमन रिसोर्स की स्मगलिंग रोकें पहले आप। पीपल आप देखिए ना, हमारे इस वक्त आप देखें 8वीं पास बच्चा कहाँ जा रहा है, वो पाकिस्तान में मैट्रिक पास आपके पास जो बच्चा बाहर जा रहा है वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, बिकॉज दे आर वेलकमिंग। तो जो सबसे बड़ी दस हमें पड़ी है, डॉलर बाहर जाना इतना नुकसान नहीं है हमारा, गंदम चली जाए कोई मसला नहीं, वी कैन रिप्रोड्यूस। लेकिन हम सालों लगा के 18 साल लगा के एक ऐसा कंट्री जिसमें वैसे ही एजुकेशन पे, तो यहाँ पे मैं कुछ बात करूंगा आपसे ना कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये हमने बिल्ड कर लिया, उसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की इंपॉर्टेंस। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ क्यूईसी, बिकॉज वी आर व्हाट आई वाज टोल्ड कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर लिंक्ड विद द क्यूईसी डिपार्टमेंट, ठीक है। देखिए, आप माने ना माने, माइट बी इट्स हार्श टू से, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटीज में रहा हूं, मैंने काम किया है। क्यूईसी इज यूजुअली डू द कॉस्मेटिक वर्क, ठीक है। आई डोंट नो वेदर यू वुड एग्री विद मी और नॉट, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीपल आर इन्वॉल्व इन कॉस्मेटिक वर्क, पेपर वर्क पूरा हो, ये हो, एनबैक की रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट, मुख्तलिफ एजेंसीज आपके पास एक्रेडिटेशन के लिए आती हैं, ठीक है। नाउ आई वुड suggest you something, because I'm also a stakeholder, I'm not outside, I'm not outsider, I'm अगर स्टेक होल्डर में यूनिवर्सिटी में, मैं खुद टीचर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे अंदाजा है, मैं स्टूडेंट भी हूँ, स्टूडेंट भी था ना, मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं सोसाइटी में भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, तो मैं आपको कुछ थोड़ी सी सजेशन दूंगा, बिकॉज यू आर द कस्टोडियन ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन HEIs। ऐसा ही है क्या, भी समझते हैं, जो भी QEC से रिलेटेड है, आप कस्टोडियन है, आपको ना सिर्फ गाइड करना है, आपको प्लान करना है, क्या प्लान करना है उसको हम थोड़ी सी, हम डेफिनेटली वी वुड लव टू टॉक अबाउट। ओके जी, नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन फॉस्टर द करिकुलम, आप करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं, आप स्टाफ और टीचर्स की ट्रेनिंग करवा सकते हैं, एंड रिसर्च एंड स्कॉलरी एक्टिविटीज यू कैन फोकस। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, लेकिन व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई हैव विटनेस, क्योंकि मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, majority of the time you do activities just to fill the calendar, just to fill the paper, you know, essence is not there, soul is not there, that's why we are not getting the fruits। हम मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, जब लोगों से उनसे कैलेंडर चेक करते हैं, एक्टिविटीज पूछते, पूरी है जी, पूरी एक्टिविटीज है, लेकिन आउटकम, आउटकम निल है। और उस निल होने की वजह क्या है, वो तो देखें जी, आपको बिल्कुल, मैंने अभी आई रिट्रेट माई सेल्फ कि जो सबसे बड़ा मुझे जो इस वक्त अफसोस है वो ये है कि हमारे यहाँ जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आप खुद सोचें, हमारी गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चा तैयार कर रही हैं कि ये दरख्त जो है वो फल देगा, और जब वो दरख्त फल देने के काबिल होता है वो पूरा जड़ों के साथ निकल के किसी और के बाग में जाके लग जाता है, फल वहाँ गिर रहे हैं। तो दिस इज अलार्मिंग, दिस इज द रियल अलार्मिंग थिंग। हम डॉलर्स को रो रहे हैं, मैं डॉलर्स को इतनी वैल्यू इसलिए, डेफिनेटली इट्स वेरी, इट्स हैज अ वैल्यू डेफिनेटली, लेकिन जो ब्रेन ड्रेन है उसमें आपका डेफिनेटली किरदार है। ओके, व्हाट यू नीड टू डू एज अ QEC, आपने क्या करना है, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना है, सस्टेनेबिलिटी, अवेयरनेस एंड एडॉप्शन, आपको बाकायदा। अच्छा, मैं इस पर थोड़ा सा ना, थोड़ा सा नीचे जाके आपको दिखाता हूँ कि व्हाट वी आर फेसिंग नाउ, व्हाट मेजर सॉरी, आगे आगे आ आगे। गया, ओके, मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वी आर हैविंग राइट नाउ। तो वी आर हैविंग एयर पॉल्यूशन। पंजाब, इफ यू बिलोंग टू पंजाब, 3 महीने के लिए बंद पड़ा हुआ है। आज वो कह रहे थे कि जी 7 दिन की छुट्टियां स्कूल की बढ़ा दी, तो तालीम वैसे ही नहीं है,
और अगेन स्मोक, मुझे याद है इन माय चाइल्डहुड बिकॉज आई यूज्ड टू बी इन पंजाब अपने रिलेटिव्स के पास, तो वो कहते हैं पंजाब की हवा ऐसी अच्छी है, ठीक है, और बेहतरीन है, सब कुछ है। इस वक्त पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स कराची इन मंथ्स में, दे डू नॉट प्रेफर टू लिव देयर। वो ये तो अब एरियाज में जाते हैं, पूरा पंजाब जो है उसकी एटमॉस्फेयर, मुख्तलिफ ग्रिड्स हैं जो AQI को चेक करती हैं। तो एक टूल है nature.com का, उसमें हमने जब उसको देखा तो उसमें तो डिफरेंट बेंच मार्किंग है। मैं आपको हिंट देता हूँ और फिर इसको रिलेट करूंगा QEC का क्या काम है। 10 की जो वैल्यू है ना, इफ जो भी उनका पैरामीटर है, अगर इफ यू आर हैविंग अ लेस देन 10 वैल्यू, इट मींस योर एयर इज वेरी हेल्दी, एंड अबव 30 इज एक्सट्रीम अनहेल्दी। पूरा यूरोप, आई कैन शेयर इट विद यू, पूरा यूरोप जो है 10, 9, 8 ग्रीन, पूरा यूरोप। कुछ कंट्रीज के सिटीज ऐसे थे जो येलो थे, येलो का 12, 13, 14 थे। पाकिस्तान के 4 शहरों की इसमें रिपोर्टिंग है। Karachi was having a value of 61. Lahore was having a value of 68. Faisalabad was 54. Islamabad was the most healthy one and it was having a value of 48. Now you can imagine कि what is our AQI. अच्छा, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब वो दे रहा है, ये हमारे बिहेवियर पैटर्न है ना। आप भट्टे बंद नहीं करते बिकॉज पीपल हु आर the custodian or the controller, they are educated, they are university educated usually. They believe, because they do not have a concept of sustainability, they believe हमारा क्या जाता है यार, मैंने पैसे ले लिए, लाख रुपए पकड़ लिए, भट्टा पूरा साल चलने दिया, अब उस बंदे का बच्चा भी खांस रहा है, उसकी माँ भी जो है एलर्जी का शिकार है। तो अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे, जैसे सर ने बताया अभी, सर सलमान ने, द स्टूडेंट्स वी आर हैविंग राइट नाउ who are sitting as a student, they are the opinion leader, decision maker of the next generation. आज से 20 साल पहले हम सब, 15 साल पहले हम सब एज ए स्टूडेंट बैठे होते थे, आज शायद मुल्क को जो चलाने वाली नस्ल है उनमें हम शामिल हैं। वी आर ओपिनियन लीडर्स इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप HEIs में जो आपके पास बच्चा आ रहा है उसको 2-3 चीजें जरूर सिखाएं। एक तो आप, फॉर मी, अगर आप मुझसे पूछें, आप सबसे पहले अपने टीचर्स को ट्रेन करें कि दे शुड नॉट प्रमोट लिविंग पाकिस्तान। आई बिलीव, बिकॉज इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि कुछ टीचर्स, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स, वो खुद कह रहे होते हैं यार तुम्हारा मौका मिलता है तो तुम निकलो। तो ना, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज टोटली अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस। मे बी मैं शायद ऑप्टिमिस्टिक होकर बात कर रहा हूँ, लेकिन यही हमारा कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकाल के देगा। क्योंकि वो जो 2 लाख पढ़े लिखे बाहर बैठे ना, अगर वो पाकिस्तान में होते तो वो 2 लाख जो है वो यहाँ के 2 करोड़ पे भारी हैं। तो यहाँ कौन रह गया? आप मुझे इस तरह से देखिएगा, जो मैं अगली बात कहूंगा, यहाँ कौन रह गया जो फारिग है। तो मैंने इससे पहले ही डिस्क्लेमर लगा दिया, ठीक है। तो वी नीड टू फोकस दिस थिंग वेरी वेल। ओके, द सेकंड थिंग व्हाट वी नीड टू डू, हमने कहा करिकुलम आपने डिजाइन करना है। अच्छा, करिकुलम जब आपने डिजाइन करना है तो मैं आपसे पूछता हूँ जी कि ये बहुत स्लो चल रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, इफ आई आस्क यू, if I ask you, चले क्योंकि डिस्प्ले से नहीं आ रहा, if I ask you कि in what areas you can inculcate the sustainable material or things can be included, तो आपका जवाब होगा क्या होगा? क्योंकि जो ऑडियंस है या ऑनलाइन में कोई मुझे जवाब देना चाहे, in what areas we can include the sustainability content in our syllabus, हम अपने सिलेबस में कहाँ सस्टेनेबिलिटी डाल सकते हैं जी? एनीबडी ऑनलाइन में कोई जवाब देना चाहे, या ऑडियंस यहाँ से आपके ख्याल में आप लोगों से पूछ रहे थे जी। Social responsibility. ठीक है, You have only one course, BBA. ठीक है, Here, but all over Pakistan. ठीक है। So I think soft skills. सॉफ्ट स्किल, Awareness. अवेयरनेस, ठीक है, Sustainability is a concept. ठीक है। Skills and responsibility. बात, अच्छा, मैं सवाल रिपीट करता हूँ। हमारे पास डिफरेंट डिसिप्लिन हैं, इंजीनियरिंग है, बिजनेस एजुकेशन है, सोशोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर है, मुख्तलिफ। किस डिसिप्लिन में हम सस्टेनेबिलिटी का कंटेंट डाल सकते हैं? यूजुअली आपको क्या पता है कि किस कोर्स में
किस डोमेन में, किस स्ट्रीम में, एजुकेशन की जो स्ट्रीम्स है कॉमर्स साइंस ये ना, तो किस स्ट्रीम में हम सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि क्यूईसी तो सबको देखता है ना, मैं तो बिजनेस का टीचर रहा हूँ तो मैं तो बिजनेस जानता हूँ, लेकिन क्यूईसी वाले तो मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग को भी देखते हैं आप लोग, मेडिकल को भी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी मेडिकल ऑफर कर रही है, अगर आप जो है वो जनरल साइंसेस कर रहे हैं आप उनको भी देखते हैं, यू आर कस्टोडियन ऑफ एवरीवन। तो आपके ख्याल में किस किस डोमेन में आप सस्टेनेबिलिटी का कंटेंट डाल सकते हैं या डलवा सकते हैं कोर्स में? तो मैं आपको हर स्ट्रीम में, आते साहब हर स्ट्रीम में चलें, गुड, आई एम श्योर वी आर ऑन द सेम पेज। नाउ इफ यू सी इंजीनियरिंग, अगर इंजीनियरिंग की बात करें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दीज आर द कॉमन स्ट्रीम्स। आप जी ऐसे आप जब सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे ना, तो जो बच्चा है वो ऐसी मशीन्स बनाएगा विच आर नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, कंजर्वेशन की तरफ वो करेंगे। जैसे आपके इन्वर्टर एसीज बने, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, आपके एलईडी बल्ब्स आ गए, आपकी सोलर जो कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स जो आ रही हैं, ईवीज, सिविल इंजीनियरिंग, बाकायदा एक सर्टिफिकेशन है, इसको कहते हैं लीड सर्टिफिकेशन, LEED, लीड सर्टिफिकेशन। इट मीन्स द प्रेमिसेस, द कंस्ट्रक्शन इज टोटल एनवायरमेंटल फ्रेंडली। बिजनेस में तो आई एम श्योर सभी को पता है, ग्रीन HR, ग्रीन मार्केटिंग, ग्रीन फाइनेंस, सब ग्रीन सप्लाई चेन, दिस इज द कॉमन थिंग। अर्बन डेवलपमेंट, अगर आपके पास कोई ऐसे डोमेन, जैसे कुछ जगहों पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है वहां पे आप बच्चों को जब सस्टेनेबिलिटी पढ़ाएंगे, आप उस कोर्स कंटेंट में वो चीजें डालेंगे, कंटेंट में डालेंगे, तो स्टूडेंट विल रियलाइज कि हाउ दे कैन इम्प्लीमेंट देयर नॉलेज इन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में बारिश होती है, पता है पाकिस्तान में बारिश होती है तो वो रहमत है या जहमत है? ऑनेस्टली कराची के हिसाब से जहमत है। अच्छा, वाटर, द नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर इज ओनली वन, मीठे पानी का एक ही नेचुरल रिसोर्स है, क्या? रेन। रिवर जो है वो स्टोरेज है, सिर्फ बारिश होती है, अल्लाह ने एक मैकेनिज्म बनाया, बारिश जो है मीठा पानी बरसाती है, वो कभी रिवर में सेव होता है, कभी ग्लेशियर बन जाता है, और वो अकॉर्डिंग टू जरूरत वो नीचे आपको मिल रहा होता है। जो चीज हमारी नेचुरल रिसोर्स है उसको हमने जहमत बनाया हुआ है, सारा पानी गटर में हम भेज देते हैं। आप देखेंगे जगह जगह आपने सीमेंट लगाई हुई है। आपकी जो अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट कर रहे हैं, दे हैव नो आइडिया कि व्हाट दे आर डूइंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अर्बन प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं। आज की अभी की बात बताता हूँ आपको, विच वी फेस टुडे। व्हेन आई लेफ्ट माय होम बिकॉज देयर इज अ क्रिकेट मैच, मैं D2 में रहता हूँ गुलशन में, तो वहाँ से जब मैं आया तो हसन स्क्वायर पे ट्रैफिक जाम थी। आई वॉज एक्सपेक्टेड टू बी हियर एट 1:45 और मैक्स 1:50, ठीक है, और मुझे 2:35 2:40 हो गए पहुँचते। It took me around more than 40 minutes to just cross the bridge. जो हसन स्क्वायर का ब्रिज है उससे मुझे यूं टर्न लेके नीचे उतरना था। It took me around 40 minutes. और नॉर्मली वो 40 सेकंड का रास्ता है, बहुत हल्का चलाओ तो 1 मिनट का रास्ता है, 39 मिनट्स एक्स्ट्रा। मेरी जैसी वहां पे कम से कम दोनों ट्रैक पे 10-15 हज़ार गाड़ियां फंसी हुई थी। अब मुझे बताएं आप कि जो प्लानर है, अच्छा यही ट्रैफिक जैम मैंने नहीं देखी जब एक्सपो हुआ। एक्सपो 4 दिन हुआ, रोड इसी तरह बंद थे, लेकिन बिकॉज एवरीथिंग वाज प्लान तो ट्रैफिक बड़ी स्मूथ थी। छोटे मोटे, यानी यही रोड मुझे क्रॉस करके जाना पड़ता तो 1.5 से 2 मिनट में निकल जाता, 4 मिनट में निकल जाता। इट इज यूजुअल बिकॉज ऑफ द हैवी ट्रैफिक। आज मुझे 40 मिनट्स लगे। अब देखिए जो प्लानर है वो भी किसी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, बट बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। अब देखिए हुआ क्या होगा आज, मैं आपके लिए एक अलार्मिंग चीज बताता हूँ। पहले पूछ लें कि हुआ क्या है। अच्छा हुआ क्या होगा, पहले आप पूछ लें, हुआ चले मैं क्या आपसे होगा? पूछता हूँ, आप बताएं क्या हुआ होगा, Self understood किस है। चीज में मैं जो है इतना आई एम वरिड, क्या नुकसान किया आज हमने, और वो अभी भी हो रहा होगा। ट्रैफिक इज स्टिल जैम देयर। पेट्रोल जला और टाइम दाया हुआ और ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। अब देखिए ये एक ऐसा मुल्क है जहां पेट्रोल, अटेंशन, ठीक है, हेल्थ इश्यूज, कार्बन फुटप्रिंट, द वेरी ह्यूज कार्बन फुटप्रिंट। जब आप, मैं आपको, क्योंकि अभी वो हमने प्रेजेंटेशन में डाला नहीं है, मुझे पता नहीं था, तो मैं जरूर डाल लेता अगर ये आज होना था। अगर वो 40 मिनट अगर वो 40 मिनट, हाँ डेफिनेटली। तो मैं आपको बताऊं, व्हेन 1 लीटर इज बर्न, तो आप 3.2
केजी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर देते हैं। और 1 घंटा जब गाड़ी खड़ी रहती है तो आधा लीटर ज़ाया कर देती है। हमने 25-30 मिनट एवरेज, ऑन एवरेज हमने 25-30 मिनट वहां ज़ाया किए। हजारों गाड़ियां थी। अगर आप सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स पे भी जाएंगे ना, तो आराम से आज उस रोड पे, उस ट्रैफिक में 10-15-20 लाख का पेट्रोल ज़ाया हो गया होगा। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं। अगर आप इसके बाद हम सेशन के बाद, क्योंकि आई एम गुड इन मैथ्स एंड स्टैट्स, ही नोज मी वेरी वेल, तो मैं आपको कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट डॉलर बता दूंगा, ठीक है, एक आपसे कंसर्न लेने के बाद, कितना पेट्रोल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्लानिंग। 6 बंदे अगर आप तरीके से खड़े कर दें, सही तरीके से मैनेज करें, तो आप कम से कम आज की तारीख में 20-25-30 लाख रुपए का पेट्रोल बचा सकते थे। ये आपके रिजर्वायर पे बोझ है। और ये भी एक ट्रैक पे सिर्फ, ये ट्रैक एक ट्रैक पे। उसके बाद हम आगे जाके भी ट्रैफिक में फंसे, लेकिन क्योंकि वहां ज्यादा मसला था, आप इकरा यूनिवर्सिटी से सर आते जाते हैं, आपको पता है वो ट्रैक टूटा हुआ है, उसके बगैर में कैलकुलेशन है। मैं अभी एक जगह मेरी प्रेजेंटेशन है कुछ दिनों में, तो मैं उसको एज अ वो एक्टिविटी यूज करूंगा, कुछ दिनों में आप वीडियोस में देख लेंगे वो। तो आपको अंदाजा नहीं है कि हम ईयरली करोड़ों डॉलर का पेट्रोल आइडल, जो गाड़ी खड़ी होती है, जो ट्रैफिक जैम में फंसती है, उसमें ज़ाया करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये वो पेट्रोल के पैसे हैं जो आप कम्यूटेशन में इस्तेमाल करते हैं, वो तो ज़रूरी है ना, उसमें कार पूलिंग वगैरह मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सब कुछ करने के बावजूद बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्लानिंग, हम 5 करोड़ की अगर सड़क की रिपेयर कर देना, तो कम से कम वो 80 करोड़ का पेट्रोल आपका बचा देगा, जो आइडल कैपेसिटी में इस्तेमाल हो रहा है। उसमें फटीक अलग है, टेंशन अलग है, ठीक है, गाड़ी की जो हेल्थ खराब हो रही है वो एक अलग चीज है। वैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द पेट्रोल। पेट्रोल इज अ नेचुरल रिसोर्स विच हैव अ वेरी हाई कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट जो है उसका बहुत हाई है। तो ये तो अभी मैं सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट बता रहा हूँ। अब आप इसकी जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट देखेंगे, तो अगेन इन्वायरमेंटल कॉस्ट इज ह्यूज। अभी कुछ दिन पहले आई वेंट टू, अब देखिए ये जो सोच है ना आपने, ये आपने अपने टीचर में लानी है। हम क्योंकि एकेडमिया का हिस्सा है, तो दे आर डिफरेंट इंस्टीट्यूट, इफ यू आर टीचिंग देयर, उनकी आप सिर्फ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में चले आए, तो यू वुड रियलाइज कि हाउ मच पेपर दे आर वेस्टिंग बिकॉज ऑफ द प्रोसीजरल थिंग्स। तो आप अंदाजा लगाएं, तो ये क्यूईसी की जिम्मेदारी है जी। यू हैव टू इनकॉर्पोरेट द थिंग्स इन अ सस्टेनेबल वे, और आपकी ये से होनी चाहिए। इफ यू आप लोगों के लिए हम हाजिर हैं, आपको जब भी लगे कि हम आपके लिए कुछ इस पे काम कर सकते हैं, डेफिनेटली वी वुड लव टू वर्क विद यू। बट द बेसिक थिंग कि आपने कॉस्मेटिक से बाहर निकलना है, बिकॉज इफ यू आर डूइंग इट जस्ट फॉर द कॉस्मेटिक थिंग्स, तो फिर तो वो होगा जो आप कर रहे हैं। अगर मैं इससे बात करता हूँ, बिकॉज आई नो मेनी पीपल इन क्यूएसी इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, तो व्हाट आई हैव सीन, दे आर डूइंग एवरीथिंग but the things have not been changed. They propose half-heartedly, the other person think more than half, less than half-heartedly, and what is implemented, you know it very well. तो अच्छा, मजबूरी क्या है? If you do not do it, तो आप और कितने नीचे जाएंगे यार? आपका मुल्क इस वक्त 3-3, 4-4 महीने बंद। पंजाब, it's almost 65% of the population, next to 65%, 65% की आधी आबादी आपकी 3-3 महीने स्टक है यूं। इंडस्ट्री बंद करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल रीजंस। और कितना नीचे जाएंगे? अगर आप अब भी अपने बिजनेस ग्रेजुएट्स को, अगेन मैं एम्फसाइज करूंगा, यू आर द क्वालिटी कस्टोडियंस। क्यूईसी का जो डिपार्टमेंट है उसकी सोलर स्पिरिट पढ़े, तो आपको यू शुड फील वेरी हाई, क्योंकि एजुकेशन के बगैर हम चल नहीं सकते। एजुकेशन में HEIs का किरदार बहुत हाई है। हम क्योंकि प्राइमरी स्कूल पे डेफिनेटली अभी जो हमें जो ओपिनियन लीडर्स चाहिए वो यहाँ से मिलेंगे, और जब हायर एजुकेशन में एंटर होते हैं तो क्यूईसी इज द कस्टोडियन ऑफ द क्वालिटी। तो आपको टीचर्स ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं खुद उस बिरादरी से हूँ। पीपल आर नॉट रेडी, टीचर्स आर नॉट रेडी। वो बिजनेस के टीचर्स तो फिर भी शायद रेडी हो, दे बिलीव कि चलो यार ग्रीन HR पढ़ लो एक। देखिए इस वक्त क्या हो रहा है, अभी जब मैं आपसे कहूँगा ना कि आप जो है ना वो सर करिकुलम में डालें, तो आपके पास 3-4 इलेक्टिव्स होंगे। ग्रीन सप्लाई चेन एक इलेक्टिव है, होगा आई एम श्योर। ग्रीन फाइनेंस, शायद ग्रीन इकोनॉमिक्स, या ठीक है, ग्रीन मार्केटिंग इज कॉमन, और कहते हैं ग्रीन HR। बस ये 4 इलेक्टिव है। तो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग ऑन सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, अब अगर आप इस बात को नहीं समझ, देखिए हम
पाकिस्तान की इलीट क्लास बैठे इंटेलेक्चुअल लेवल पे, हम सब पाकिस्तान की इलीट है ना। कितने लोग नेशनल लेवल पे एजुकेशन हासिल करते हैं? डॉक्टर इसानी याद होगा आपको 2.7 बताते थे सर। चले मैं कहता हूँ बहुत तीर मार लिया, 5 सालों में हम 5% पे आ गए। 5% पीपल आर इनरोल्ड, दे आर इनरोल्ड, तो 95% तो हमसे नीचे है। और हम तो ऑब्वियसली मास्टर्स वगैरह करके, एमफिल करके, पीएचडी करके बहुत ऊपर आ गए। वी आर जस्ट 1%। तो अगर हम इसको सुपरफिशियल तरीके से ले रहे हैं तो हम का क्या हाल होगा? तो हमें इसको बड़े अर्जेंट बेसिस पे लेना है। आप नहीं लें, कोई मसला नहीं। मुझे डाउट ये है, ये मैंने अपने थीसिस में भी कोट किया था पीएचडी के, कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द 2 or 3 कंट्रीज which are having पोलियो इन द एंटायर वर्ल्ड। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और शायद कोई एक तीसरा मुल्क है। पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो गई है। पूरी दुनिया में यूं देखती है आंखें फाड़ के पोलियो। मुझे डाउट ये है कि अगर हमने अपनी चीजें चेंज नहीं की ना, तो आज से 20 साल बाद दुनिया में सस्टेनेबिलिटी पे भी ऐसी देखेंगे। हमने आज तक डैमेज नहीं किया है। वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। हम तो इसका शिकार हुए हैं। क्लाइमेट चेंज इज अ वर्ड जिसका हम शिकार हुए हैं। हमने क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट बहुत कम किया है, लेस देन 1% है हमारा। आबादी बहुत ज्यादा है तो हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन शिकार हम बहुत तेजी से हुए हैं। लेकिन जिस तरह हम आगे जा रहे हैं, आगे चल के हमें इट इज डाउटेड कि पाकिस्तान पे ये ब्लेम लगने लगेगा कि आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में शामिल हैं, हालांकि हम है नहीं टेक्निकली। करना क्या है, व्हाट इज द बेसिक आइडिया? अच्छा, आप टेक्सटाइल, जैसे सर ने भी एग्जांपल दे दी टेक्सटाइल। बैंकिंग की अगर हम बात करें कि बैंकिंग में इस वक्त आपको पता है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, दे हैव ऑर्डर्ड ऑल द कमर्शियल बैंक और नेशनल बैंक्स कि आपने ग्रीन फाइनेंसिंग को 3 साल में बड़ा फोकस करना है। तो वी शुड make people understand, our students understand कि without sustainability you cannot perform extraordinary in the corporate sector. People are looking towards you. इस वक्त मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैं कॉर्पोरेट एडवाइजरी कमेटी का जो है सेक्रेटरी भी था। तो वहाँ पे जितने भी लोग कॉर्पोरेट एडवाइजरी कमेटी के जो हमारे मेंबर्स थे वो आते थे फ्रॉम द इंडस्ट्री, दे यूज्ड टू से कि यार जो आते हैं ना उन्हें इंडस्ट्री नीड्स का नहीं पता। एंड व्हाट आई बिलीव कि कुछ चीज़ें तो एक्टिविटी वाइज होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ट्रेंड्स हैं। अब ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, हमें वो लोग चाहिए जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस समझते हो, सस्टेनेबिलिटी कंसर्न रखते हो, उन्हें पता हो कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस। क्योंकि जो पिछली जनरेशन है वो तो ओरिएंटेड ही नहीं है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट जितने भी यहाँ लोग सुन रहे हैं मुझे ऑनलाइन, आई डू नॉट नो फ्रॉम हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज आर लिसनिंग टू मी, आपको अगर अपने बच्चे को एक कॉम्पिटेटिव एज दिलाना है तो you have to give them a very full orientation of the sustainability through your curriculum and even through your role models. आपको अपने टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आपका टीचर जो है आज भी 40 पेपर का असाइनमेंट लेता है और कहता है मुझे प्रिंट आउट दो और क्लास में 100 बच्चे हैं, मतलब है कि उसकी अपनी सस्टेनेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट हैं दे आर नॉट क्लियर। 40 पेजेस असाइनमेंट पर बच्चा, 100 असाइनमेंट, 4000, आपको अंदाजा नहीं है आपने कितने दर कुर्बान कर दिए। और आपको भी पता है कि जब 40 पेजेस का असाइनमेंट हो तो टीचर कितनी देर लगाएगा उसमें? मैक्सिमम 10 मिनट लगा लेगा, असाइनमेंट में 15 मिनट लगा लेगा। तो आप उसको सॉफ्ट कॉपी चेक कर सकते हैं। तो ट्राई टू मिनिमाइज एज अ टीचर, ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ द पेपर। ये आप रोल मॉडल के तौर पे काम करेंगे। अच्छा, मजे की बात ये है पढ़ा सब कुछ है लेकिन रोल मॉडल नहीं है तो पीपल विल नॉट टेक यू वेरी सीरियसली। इट्स वेरी सिंपल। So we need to focus on this. Now, when we talk about the inclusive and equitable quality education, देखिए हमें जब हम बात करते हैं inclusive education की, तो you have to take an input from everyone. देखिए हर इलाके के, हर नेशन के, हर कास्ट के, सबके अपने मसले हैं। When you take them on board, तो जो उनका इनपुट है it would give you the viable solution. मैं यहाँ बैठ के अगर बलूचिस्तान की प्लानिंग कर रहा हूँ, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। आप अगर कराची हाइट है प्योर, तो कराची हाइट का एक बड़ा कॉमन जुमला है, वही कहते हैं जी कि हमारे लिए जो लोग प्लान करते हैं ना, यूजुअली दे डू नॉट बिलोंग टू कराची। अच्छा, कराची में किसी भी कास्ट का, रेस का, लैंग्वेज कोई भी बंदा रहता हो, उसका प्रॉब्लम सेम है। द पर्सन अंडरस्टैंड द सेम थिंग बिकॉज वो ग्राउंड रियलिटीज को समझता है। तो जब हम ये कराची के लिए वैलिड रखते हैं तो ये पंजाब के लिए भी वैलिड है, बलूचिस्तान के लिए भी। तो यू हैव टू इंक्लूड एवरी स्टेक होल्डर। आपको उनको एक्सेस देना है
ताकि आपकी मैथडोलॉजी बेहतर हो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। अगेन, जैसे आतिफ ने शुरू में कहा था कि जेंडर इक्वालिटी इज अ वेरी इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस, और आपकी हायर एजुकेशन में ये इनरोलमेंट कम होती नजर आती है। उसके मुख्तलिफ सोशल रीजंस है, बिकॉज गर्ल्स यूजुअली गेट अर्ली मैरिजेस, उनकी एक ये भी इशू है। उसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट अफोर्डेबिलिटी इज वन ऑफ द थिंग। तो क्यूईसी को एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि इफ अ पर्सन इज टैलेंटेड इनफ, qualified enough and willing to study, he should not leave education because of the financial things. I'm sure आपके पास होंगे, दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेरिट को फोकस करना चाहिए। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जिन यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप होती है, वो स्कॉलरशिप को थोड़ा छुपा के रखते हैं। वो कहते हैं आएगा तो दे देंगे। दिस इज माई बिलीफ, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं एक स्टेक होल्डर के तौर पर बात कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ठीक। इट शुड बी प्रोमोट एक्सक्लूसिवली। अच्छा, इसको अगर आपने एविडेंस देखना है तो आप एक काम करें, आप एक यूं काम करें कि जो बच्चे इंटर पास कर रहे हैं, अभी ए लेवल्स कर रहे हैं, उनको जाके दो, बिकॉज दे आर योर टारगेट मार्केट ना, बीबीए की टारगेट मार्केट में। आप उनसे जाके पूछे ना कि तुम्हें पता है कि जो ज़ाबिस जो है वो कितनी स्कॉलरशिप्स देती है, आपको पता चल जाएगा। उसको ये पता होगा पेप्सी के कितने जो है वो चीज़ें मिल रही है, पेप्सी की कितनी प्राइस, बिकॉज दे एडवर्टाइज अ लॉट। मरिंडा जो है वो किस किस साइज में मिल रही है उसको पता होगा। उसको ये पता होगा सुपर बिस्किट्स के जो है कौन कौन से पैकेज अवेलेबल है, ये पता होगा, because he is a user ना, they advertise, but you do not advertise, you facilitate. This is my belief, मैं मार्केटियर हूँ। I believe कि अगर आप उसको 16 स्पिरिट से करेंगे, आप उसको हाईलाइट करके भेजें कि यार हमारे पास मेरिट में स्कॉलरशिप्स हैं, if you are तो if you are capable enough, you are qualified enough, we will provide you every facility, ताकि वो इक्विटी जो है ना, इक्विटी का कॉन्सेप्ट मीट हो सके। क्योंकि व्हाट आई बिलीव, स्कॉलरशिप्स भी अक्सर वही बच्चे लेते हैं जिनकी थोड़ी जान पहचान होती है, या हु नोज अ मैकेनिज्म। बहुत सारे बच्चे जो है वो बड़ी यूनिवर्सिटी, देखिए मैं एक इस वक्त आई एम रिप्रेजेंटिंग द सोसाइटी। एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उसको पता ही नहीं होगा यूनिवर्सिटी में जो है कोई स्कॉलरशिप है जो उसका वेट कर रही है। ये बातें पता है किसको बताऊंगी? जिस आपके वो बच्चे जो इस वक्त ज़ैबिस में पढ़ रहे हैं या किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एंड दे नो कि यार यहाँ स्कॉलरशिप होती है, वो अपने जानने वालों को बताएंगे, वो बच्चा आ जाएगा। बट पब्लिक डू नॉट नो। तो आपको, दिस इज माई बिलीफ, अगेन आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आई बिलीव कि आपको थोड़ा सा उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, ताकि इंक्लूसिव और इक्विटेबल जो क्वालिटी एजुकेशन है वो तरीके से स्प्रेड हो। और उसमें क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी इनहेंसमेंट सेल जो आप जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका बहुत किरदार है, ठीक है? व्हाट आई बिलीव कि योर रिकमेंडेशन इज आर टेकन वेरी सीरियसली। ओके, एक और चीज़ जो बड़ा चैलेंज हमें नजर आया कि जब when the online was started after the post in COVID period of time, so what happened कि the teachers were not ready to teach online. I was part of it, मैं भी तैयार नहीं था, but when we were forced we started teaching. स्टूडेंट भी तैयार नहीं थे, even universities were not ready, और तमाम चीज़ें जो है अल्लाह ने कुछ मदद की और तमाम चीज़ें चल गई। प्रॉब्लम उसमें ये है कि जो असेसमेंट टूल्स है ना हमारे, वो कन्वेंशनली इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप देखें कि आप असाइनमेंट्स लेते हैं, वही कन्वेंशनल असाइनमेंट्स हैं। आप क्विज लेते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, आपको कुछ और, जिसमें क्यूईसी का किरदार बहुत अहम है, टू गाइड द टीचर्स, टू ट्रेन द टीचर्स कि व्हाट आर द डिफरेंट असेसमेंट टूल्स। अच्छा, एक और मजे की बात यह है कि मोटिवेशन इज नॉट देयर। जब ऐसी आप चीज़ें अरेंज करवाते हैं तो फैकल्टी उसको इतना एक्साइटेडली नहीं लेती। तो मैं आई बिलीव कि अगर आप इसको ऑन कैंपस की जगह किसी और जगह करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, कोई किसी थर्ड पार्टी में, क्योंकि देन पीपल टेक इट सीरियसली। यार ठीक है, हमें कोई चांस मिल रहा है, नेटवर्किंग का चांस मिल रहा है, किसी होटल में होती है, किसी थर्ड पार्टी प्लेस पे होती है ना, तो वहाँ पे जो है पीपल टेक इट वेरी सीरियसली। इफ इट इज हेल्ड ऑन द सेम प्लेस एंड यूजुअली इट इज टेकन बाय by the internal trainer, so people do not take it seriously. वो उन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेते, and you have to develop the faculty and teacher attitude. Definitely हम बात कर चुके हैं। हाँ, develop a safeguarding and whistle blowing hub for the faculty. Okay, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
जो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बात होती है, आपको अंदाजा है कि जी when the students have some grievances they go online and sometimes it gives a bad reputation to, तो आपको एक इंटरनल मैकेनिज्म ऐसा डेवलप करना चाहिए और QC कैन टेक अ लीड। आपको डेफिनेटली स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि जब से ऑनलाइन शुरू हुआ है दे आर द क्या कहना चाहिए, क्लैश कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज देयर। स्टूडेंट का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और टीचर्स का जो टीचर जिस चीज़ में विन विन समझता है, स्टूडेंट्स में विन विन नहीं समझ रहा। ठीक है, उसको लगता है कि जो असाइनमेंट उसको दिए जा रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट फेयर इनफ, क्योंकि अगर टीचर उसको, क्योंकि बेसिकली द असाइनमेंट वाज डिजाइन फॉर द फेस टू फेस क्लासेस, तो अब उसका मैकेनिज्म ऐसा है कि जब आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं तो बच्चा उसके साथ रिलैक्सेशन मांगता है। अब देखिए सर, आपको याद होगा कि हमारे एक दो टीचर्स ऐसे रहे, मैं नाम नहीं ले रहा, कि वो हमें ऑनलाइन हमें ओपन बुक पेपर देते थे PhDs में और कहते थे एक हफ्ता जाके कर लो। एक हफ्ता देते थे और एक हफ्ते जब एंड हो रहा होता था तो शाम में हम यही सोचते थे लिखना क्या है। और इन दैट टाइम हम दुनिया के हर बंदे को जिसको हम जानते हैं और जो हमें जानता है कांटेक्ट कर लेते थे, सर ने सवाल दिया है प्लीज गिव अस द आंसर, और बोलते थे यार पता नहीं कहाँ से दिया है। ठीक है, तो अगेन इट वाज चैलेंजिंग। और फिर हम जब उनको सर को जवाब लिख के देते थे एंड व्हेन दे यूज्ड टू कम इन द क्लास, तो हमें बताते थे यार दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज व्हाट आई वांटेड यू। अब कुछ प्रैक्टिकली कुछ काम ऐसे करवाएं, कुछ वीडियोस बनवा लें, कुछ ऐसे असाइनमेंट्स, नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट इट ना, वहाँ पे क्रिएटिविटी मैटर्स अबाउट। अच्छा, ये चीज़ जो है ना आपकी जो एजुकेशन की क्वालिटी को उसको राइज करेगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम कन्वेंशनल चीज़ों में फंसे, जैसे ही आप ऑनलाइन टूल इस्तेमाल करते हैं आपकी इंक्लूसिविटी तो बढ़ जाती है। ठीक है, इक्वलिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि एक्सेस आ गया, लेकिन क्वालिटी बड़ी मुतासर हो रही है उसमें। तो आपको बहुत तरीके से इसको जो है फोकस करना पड़ेगा। एक और चीज़, ये टीचर्स को अगर आपने ऑन बोर्ड लेना है तो जो आपके KPIs है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के, यू हैव टू इंक्लूड समथिंग ऑन इट। ठीक है, ताकि टीचर्स के लिए भी एक इंसेंटिव हो कि जो उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है उसमें कुछ KPIs ऐसे हैं कि जैसे मैं एक जगह पढ़ रहा था, उसमें बड़ी बड़ी प्यारी बात लिखी थी कि जेंडर इक्वालिटी की, कि यूजुअली व्हेन टीचर टॉक अबाउट आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो यूजुअली जो जेंडर कम्स इन माइंड इज मेल। तो आप ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करें, टीचर को बताएं जो जेंडर स्पेसिफिक ना हो। इट्स अ ट्रिकी थिंग, इट्स अ ट्रिकी थिंग कि आप जब सक्सेस की या कोई बात कर रहे हो या कोई बात कर रहे हो तो वो जेंडर स्पेसिफिक ना हो। तो टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा ना, ताकि जो गर्ल्स वहाँ पे मौजूद हैं वो इंक्लूसिव फील करें, वरना उनको लगता है यार ये तो लड़कों से मुतालिक बात है। ठीक, तो ये एक दिस इज वन ऑफ द थिंग वेयर वी नीड आवर टीचर टू बी ट्रेन। और अगेन जब हम उन्हें कोई इंसेंटिव देंगे तो फिर उसमें नजर आएगी उनकी जो ओवरऑल इंप्रूवमेंट नजर आएगी। मुझे याद है कि आज से 8 साल 7 साल पहले यू कैन बी प्रमोटेड वेरी इजीली विदाउट PhD डिग्री, बट HEC इम्पोज दिस थिंग कि विदाउट PhD डिग्री यू कैन नॉट बी प्रमोटेड एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। Now it was a kind of KPI, one of the performance indicator कि आपकी वो बढ़ रही है। उससे क्या हुआ जी, people started doing PhD। फिर एक और चीज जो वक्त के साथ साथ हमने देखी कि जो डिसीजन मेकर उन्होंने डिसाइड किया कि यार पब्लिकेशन आनी चाहिए, और पब्लिकेशन जो है नाउ दे आर लिंक विद योर प्रमोशन। अब आप न्यू हायरिंग अगर करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एटलीस्ट 10, एसोसिएट के लिए एटलीस्ट 10 पब्लिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो इट इज काइंड ऑफ कंपल्सन कहेंगे, कंपल्सन कह सकते हैं जी। इंसेंटिव इसलिए नहीं कहना चाह रहा कि इंसेंटिव तो नहीं होता एज अ टीचर, आपको इंसेंटिव लगता नहीं है, But the outcome is an incentive. yeah, The outcome is promotion is- incentive. Okay, now the last thing which we are going to talk about, what areas you need to focus. The very first thing, the objective should be to create a workforce who are sustainability oriented. आपको एक ऐसी वर्कफोर्स की जरूरत है जो सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझते हो, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर द ओपिनियन लीडर। तो आपको अब ये फोकस करना है कि आप जिस स्ट्रीम की भी बात करें, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिसिन हो। अभी हमने आगा खान में जयाउद्दीन हॉस्पिटल कुछ दिन पहले लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज है, वहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस थी, तो आई वाज अ कीनोट स्पीकर देयर। तो व्हेन आई टॉक टू देम, दे आर वेरी लर्नड पीपल, बट बिलीव मी दे आर डॉक्टर्स जिनसे हम इलाज कराते हैं, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी आई फाउंड वेरी लो। एंड यू कैन इमेजिन दे आर लर्नड पीपल,
और इस वक्त हेल्थ सेक्टर के बारे में हमारा क्या गुमान है? दे आर डूइंग ऑल गुड, यस डेफिनेटली दे आर डूइंग ऑल गुड, लेकिन इन्वायरमेंटल अगर आप डिग्रेडेशन में बात करें तो टॉप 3-4 इंडस्ट्रीज में एजुकेशन हॉस्पिटल का नाम आता है, हेल्थ सेक्टर का नाम आता है, क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ देयर नेचर ऑफ द बिजनेस वो इतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, इतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और फिर कुछ बिहेवियरल इश्यूज भी हैं, तो उसकी वजह से, क्योंकि डॉक्टर्स को आप पढ़ाते नहीं है, डॉक्टर्स को आप सिर्फ ह्यूमन बॉडी से डील करना सिखाते हैं, ह्यूमन माइंड से डील करना नहीं सिखाते। They are very skillful, they are very technical, but their soft skills are not good. Same with the case with the engineers. They are very good, they are very technical. I'm sorry अगर कोई इंजीनियर बैठा हो, I'm sorry. आप बैठिए, sorry. तो आपने MBA भी किया? नहीं किया, अच्छा सॉरी, MSc किया, अच्छा अच्छा, I'm sorry. ठीक है, लेकिन यूजुअली मेरी बीवी भी इंजीनियर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने मजाक किया है, बीवी इंजीनियर है लेकिन कोई मसला नहीं है, बीवी इंजीनियर है, ये मैंने मजाक नहीं, ग्रीवेंसेस यहाँ पूरी कर नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली आई डील विद द इंजीनियर्स, तो उनकी सॉफ्ट स्किल वीक होती है, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आप QEC के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, यू हैव टू फोकस एवरीथिंग। अब इसमें हम बात करते हैं, अच्छा सॉफ्ट स्किल्स का सस्टेनेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, सस्टेनेबिलिटी इज अ न्यू बज़वर्ड, तो अभी तो उनकी सॉफ्ट स्किल नहीं डेवलप हुई थी, अब तो नई चीज आ गई है, तो यू हैव टू वर्क ऑन इमरजेंसी बेसिस, क्योंकि इंजीनियर्स आर दोस इज द कम्युनिटी विच प्रोड्यूसेस थिंग्स। आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो आपको इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस देगा ना, आपको बल्ब लाइट वगैरह जो है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स देगा। जो सिविल इंजीनियर है वो ऐसी बिल्डिंग बना के देगा। अब देखिए इस वक्त दिन का वक्त है, लाइट जल रही है, आपने देखा होगा बहुत सारे घर ऐसे फ्लैट्स में कि दिन में अगर आप 2 बल्ब ना जलाएं तो नजर ही नहीं आता। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सर्दियों में 12 घंटे, गर्मियों में 16.5 घंटे सूरज निकलता है, और उसमें एनर्जी क्राइसिस आपके सामने है, और उसमें हम दिन में 2 बल्ब जला के बैठे हैं। तो अगर हम अपने जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनको टाइमली बता देते भाई कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है प्रोडक्ट्स बनानी है, तो जब वो कंस्ट्रक्ट करेगा ना वो 1 लाख रुपए ज्यादा लेगा, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर खड़ा करके देगा वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा। And I think we can survive with the lights here as well. हाँ These panels are very good. डेफिनेटली वो इन्होंने बड़ी अच्छी जो है वो किया हुआ है, और बिकॉज द लाइट्स आर येलो, दिस इज गुड। चले खैर, बिकॉज चले खैर इस पर बाद में टू प्रोवाइड अ वर्कफोर्स टू द कॉर्पोरेट सेक्टर टू मीट देयर सस्टेनेबिलिटी चैलेंज। आपको इस वक्त एक ऐसी वर्कफोर्स पे काम करना है जो सस्टेनेबिलिटी के चैलेंज को समझती हो, कॉर्पोरेट सेक्टर को समझती हो, एंड दे कैन गिव द सॉल्यूशंस। कॉर्पोरेट सेक्टर में जब आप लोगों से मिलेंगे दे वुड ऑलवेज से यार लोगों को आ रहे काम नहीं आता उन्हें, और जो ये सस्टेनेबिलिटी के जो चैलेंजेस आएंगे है ना, तो द यूनिवर्सिटी हु इज गोइंग टू फोकस दिस थिंग इन द नेक्स्ट 4 years, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, द स्टूडेंट्स वुड हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। रीजन इज वेरी सिंपल, अगले 10 साल जो है वो सस्टेनेबिलिटी आपके हर चीज में पर आ गई है। अभी आपको पता है COP27 हुई है जिसमें हमारे शहबाज शरीफ जो वजीर आजम है वो गए थे, एंड ही रिप्रेजेंटेड आवर केस, एंड व्हाट ही सेड, ही ओवर एम्फसाइज कि हमें कंपनसेट करो भाई, बिकॉज हमने इतना डिस्ट्रक्शन में हिस्सा नहीं लिया, लेस देन 1%, और हम अमंग द टॉप 5 कंट्रीज व्हिच हु आर हैविंग द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन द वर्ल्ड। यानी जो जिम्मेदारी है उसमें 1% भी नहीं है हम, और जो शिकार हुए उनमें टॉप 5 में हमारा नाम आता है। तो हमें इस वक्त बहुत सीरियसली इस चीज को लेना है। अगर आप इसको अभी भी कॉस्मेटिक वर्ड के तौर पे लेंगे तो अगेन मैं यही कहूँगा कि और कितने नीचे जाना है हमने। तो यू आर द डिसीजन मेकर्स, तो टेक इट वेरी सीरियसली। आप इसको ना सिर्फ टीचर्स के साथ जो है टीचर्स ट्रेनिंग कराएं, इंक्लूड करवाएं करिकुलम में, ताकि ये दोनों चीज आपको मिले, टू क्रिएट जनरल एनवायरनमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड पीपल। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे जो भी फंक्शनल डिपार्टमेंट है, व्हाट हैपेंस, मैं कई जगह जाता हूँ और वहां पे दिन के वक्त सारी लाइटें जली होती हैं, आप बंद करने भी चाहो पीपल रेजिस्ट, चलने दो यार। हमने कई जगह ट्रेनिंग दी तो मैं बड़ा फोकस होता है कार्बन फुटप्रिंट। तो आई मेड पीपल रियलाइज कि योर एवरी सिंगल एक्ट हैज अ कार्बन फुटप्रिंट। आप जब ये बिजली का स्विच और बिजली का बटन को जो बंद करते हैं या बिजली के कोई भी अप्लायंसेस को स्विच ऑफ करते हैं, तो जो जहन में हो ना वो इकोनॉमिक कंसर्न नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एनवायरमेंटल कंसर्न।
आप ये सोच के लाइट बंद करें कि यार ये ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा ले रही है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, इस बिजली को जलाने को बनाने के लिए कहीं पेट्रोल जला होगा, उस पेट्रोल को कहीं इंपोर्ट किया होगा, उसके लिए कहीं डॉलर खर्च किए गए होंगे। ये तमाम चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। जब आप इस मैकेनिज्म को समझने लगेंगे, कार्बन फुटप्रिंट के मैकेनिज्म को, तो यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये एक सिंगल बल्ब जब आप जलाते हैं तो ये महीने में कितना वैल्यू जनरेट करता है जो वेस्ट हो रही है। और अगेन हम पेट्रोल इंपोर्ट करने वाले कंट्री हैं एंड वी आर आउट ऑफ डॉलर्स, एवरीबडी नोज दिस। तो आपको ये मैकेनिज्म समझना है। पाकिस्तान में महंगाई कॉस्ट पुल है या डिमांड पुल है या कॉस्ट पुश है? पाकिस्तान में महंगाई इन्फ्लेशन नहीं, हमारे यहाँ चीजें कम होने की वजह से महंगी होती है या उनकी जो लागत है, पैदावारी लागत है, प्रोडक्शन कॉस्ट है बड़ी हाई है इसलिए महंगी होती है? चलो मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ कॉस्ट पुश की वजह से चीजें इन्फ्लेशन का शिकार है। आप किसी से बोले या ये रोटी तुमने 20 की किया 25 की कटी, बोलेगा सर आटा महंगा हो गया, कॉस्ट पुश। सर एनर्जी क्राइसिस है, गैस महंगी हो गई। आप अभी अब रिक्शा करें जहाँ के आप कभी किसी दौर में 50 रुपए देते थे, 250 रुपए में से कम में नहीं लेके जाएगा। क्यों? इसलिए नहीं कि रिक्शा कम है, रिक्शा कम होते तो ये डिमांड पुल होता। इसलिए वो कहेगा जी कि इतनी ज्यादा महंगाई हो गई, पेट्रोल इतना महंगा हो गया तो कॉस्ट पुश। तो अगेन हम कॉस्ट पुश में इन्वॉल्व हैं। हम जो एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर रहे हैं नॉन फ्रेंडली इन्वायरमेंट, नॉन फ्रेंडली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस पूरी एक्टिविटी में कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। पॉइंट यहाँ पे थर्ड पे ये है कि आप लोगों में ये कॉन्शियसनेस लेवल प्रोड्यूस करें कि अब उन्होंने जो भी इको फ्रेंडली बिहेवियर्स रखने हैं ना, वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से नहीं करने, उसके पीछे यू मस्ट हैव सम इन्वायरमेंटल रीजंस। आपको साइकिल पता होनी चाहिए कार्बन फुटप्रिंट की, ठीक है? वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। अ करिकुलम विद द कॉम्पिटिटिव एज ओवर अदर्स। आपका जो ये जो करिकुलम होगा, ठीक है, उसको सिर्फ इलेक्टिव्स तक ना रखें। अगर आपका एक टीचर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा रहा है, आपका टीचर एक प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पढ़ा रहा है, जब कोई भी बेसिक लेवल का कोर्स पढ़ा रहा है, तो उसमें सस्टेनेबिलिटी की ओरिएंटेशन बच्चों को आप शुरू से दें, तो उससे ये हेल्प होगी कि आपका जो बच्चा तैयार होगा डेफिनेटली इट वुड हैव एज ओवर अदर्स। द लास्ट थिंग टू बी टॉर्च बेयरर ऑफ ऑल अदर टू फॉलो। आप यू कैन वर्क एज अ मार्केट लीडर। लोग आप मे बी पीपल आर स्टार्टिंग फॉलोइंग यू कि अच्छा सिंध में इस वक्त, मैं बिकॉज आई बिलोंग टू कराची, सिंध में इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, ठीक है? और कराची की अगर आप देखें तो आपको पता है वी आर नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक? उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हम वजह पे बात करने नहीं आए, हम सॉल्यूशन पे बात करने आए। एज ए इंडिविजुअल, एज ए छोड़ दे दी किसने क्या किया, कौन क्या करेगा, कौन कब करेगा, आप अपना किरदार तो अदा करेंगे। एज ए QEC आपका क्या किरदार है? ऐसे QEC आपका किरदार ये है कि आप हर नॉन सस्टेनेबल एक्टिविटी वॉट एवर इज बीइंग परफॉर्म इन योर इंस्टीट्यूशन उसको डिस्करेज करें, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के दें। A bit of thing I would like to Yeah. share here, that as we discussed earlier, that sustainability is not without profitability. पहले बात की थी अदनान ने उसके ऊपर कि जो है वो सस्टेनेबिलिटी के अंदर जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी उस वक्त तक किसी का उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा ना। तो यहाँ पे जो हम पॉइंट्स दे रहे हैं और जो हम QEC के ऊपर एम्फोसिस कर रहे हैं, देखिए इनमें से अगर हम एक दो पॉइंट को भी बीइंग एन इंस्टीट्यूशन ले लेते हैं, that my curricula is competitive in the aspect of what? Competitive in the aspect of the sustainable values they are inculcated in my graduate. मेरा जो पास आउट होगा वो सस्टेनेबिलिटी को ना सिर्फ समझता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, बल्कि जब वो कॉर्पोरेट में जाएगा तो उसके बुनियाद पे डिसीजन लेगा। एंड इफ विल टॉक अबाउट एनी ऑफ द इन उर्दू सेट, तो उसकी सोच पहले कहाँ से शुरू होती है? प्रॉफिट। उसको जब आके जॉब इनकम्बेंट बताएगा कि आई कैन क्रिएट प्रॉफिट फॉर यू। लेट मी शेयर एन एग्जांपल। हम मिडास सेफ्टी कहते हैं, मिडास सेफ्टी वाले क्या करते हैं? मिडास सेफ्टी वाले अपने बॉयलर्स को चलाने के लिए मलेशिया से जो रबर के दरख्त होते हैं ना, उनकी छाल मंगवाते हैं। उनकी क्या मंगवाते हैं? छाल मंगवाते हैं। ये एक बहुत प्रॉफिटेबल काम है क्योंकि छाल अराउंड जो है ना उनको बिल्कुल कचरे के भाव मिल जाते, तो वो उसको यूज कर रहे हैं।
तो किसी ने उनके जो HEC वाले उनको समझाया कि इसकी वजह से तो EPA या कंप्लाइंट के इतने ज़्यादा इशू आ जाएंगे, क्योंकि वो जो छाल जलाना होता है वो इतना ज़्यादा हैजर्डस होता है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टीज लग सकती हैं, हालांकि वो बहुत सस्ती मिल रही थी। तो मिडास सेफ्टी वालों ने अपनी ये प्रैक्टिस बंद कर दी, हालांकि वो ज़ाहिरन प्रॉफिटेबल नज़र आ रही थी कि वो दरख्त की छाल हमें मलेशिया से ऑलमोस्ट फ्री मिल रही है, लेकिन उसको जलाने से EPA हमारे ऊपर वो पेनल्टीज लगा सकता है कि वो सारी प्रॉफिटेबली एक मिनट में क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अब वो जो HSE मैनेजर है वो सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड है, तो वो ये काम करवाएगा, और वो आपका पास आउट है क्योंकि आपके करिकुला ने उसे बताया है कि इन्वायरमेंट भी एक प्लेयर है जो उसके अंदर होना चाहिए। डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी इज द टूल किट which is bringing in the profit in the game. The game is profitability. और हदनान ने भी बताया और हमने भी अपने आप को इस पे क्लियर करना है कि सस्टेनेबिलिटी इज नॉट CSR। तो हम CSR के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे किसी के जहन में भी CSR है, नहीं नहीं, ये पॉइंट है जो हमें क्या लेके जाएगा, ये हमें एक बेहतर करिकुला, कॉम्पिटेंट पास आउट, इंडस्ट्री ओरिएंटेड सस्टेनेबल माइंडसेट का ग्रेजुएट, और वो अल्टीमेट लेके आएगा जो हर बिजनेस चाहता है। और उस बिजनेस के अंदर अब 3 एस्पेक्ट है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। So that was something which was boggling in my mind, so I just shared it. Thanks. अच्छा, again, because right now we are in a university and we are talking about the people who are responsible for quality education. It is a very famous saying कि education transform lives for the betterment. Okay, हमने पिछले 50 सालों में ये देखा कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली तालीम बराए तालीम हासिल की जाती है। हम जेनरिक जो एजुकेशन हमने बड़ी ली है, लोगों ने BA कर लिया, BA करके क्या नॉलेज लेवल बढ़ा, क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ी, नहीं। आप सिंपल BCom को देखते, ग्रेजुएट 14 साल 16 साल बंदा पढ़ ले और उसके बाद भी उसकी कोई स्पेशलाइजेशन ना हो। तो वी नीड टू फोकस ऑन दिस। हमें इस चीज़ को फोकस करना है कि हमारे जो ग्रेजुएट हो वो प्रोडक्टिविटी रखते हो। आप देखिए नहीं, जर्मनी और जापान, they are the 2 countries which were almost went down in Second World War। लेकिन पिछले 1960 में, if I'm not mistaken, पाकिस्तान ने जर्मनी को 1 करोड़ रुपया कर्जा दिया, बड़ी मशहूर बात है, और वहाँ पे बाकायदा इसको एक्नॉलेज करते हैं। पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा नहीं दिया, सॉरी इमदाद, कर्जा नहीं, इमदाद, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से जर्मन कौम के लिए इमदाद है, ठीक है, तोहफा था। और आज ये हाल हो गया है कि जर्मनी से कुछ आ जाए तो हम बोलेंगे थैंक्स। आप अंदाजा लगा सकते, हमारा 1 करोड़, सॉरी आ नहीं रहा, डेफिनेटली वो खैर एक अलग बात है। तो पॉइंट ये है कि जर्मनी ने क्या चीज फोकस की, दे फोकस द क्वालिटी एजुकेशन, प्रोडक्टिव एजुकेशन, ठीक है। हमें इस वक्त अपने करिकुलम को ऐसे डिजाइन करना है जो यूनिवर्सल नीड्स के हिसाब से, अपने टीचर्स को ऐसे ट्रेन करना है कि उसको सोल एंड स्पिरिट के साथ पढ़ाएं। फिर एक चीज़ जो मैंने पहले कही थी, मैं आखिर में दोबारा इसको इंडोर्स करूँगा कि अगर आप टीचर्स हैं, अगर आप में जो भी टीचिंग में इन्वॉल्व है, तो प्लीज़ कोशिश करें, ये जो ब्रेन ड्रेन हमारे मुल्क में हो रहा है ना, इसको कहीं पे भी आप डिस्करेज कर सकते हैं तो इसको डिस्करेज करें, बिकॉज वी आर नॉट शॉर्ट ऑफ डॉलर्स, एक्चुअली हैं, वी आर नॉट शॉर्ट ऑफ वीट, गंदम कम है, वी आर नॉट शॉर्ट ऑफ, बेसिकली वी आर शॉर्ट ऑफ माइंड, वी आर शॉर्ट ऑफ ब्रेन, जो इस वक्त मुस्तकिल पाकिस्तान से जा रहा है। ठीक है जी, चले हम, आई जस्ट कंक्लूड, इफ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, एनी फीडबैक, आई वुड लव टू आंसर जी।